Okay Google, lights on. तो आप देख सकते हैं कि लाइट जल चुकी है. अब इसी तरह मैं इसको ऑफ करूंगा. Okay Google, lights off. हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर लर्न आईओटी. गाइस, जैसा कि आप मेरे चैनल के नाम से ही जान सकते हैं कि ये चैनल आईओटी बेस्ड है. यहाँ पे आपको आईओटी सीखने को मिलेगी. आज एक ऐसा ही प्रैक्टिकल थिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, दैट हाउ टू मेक होम ऑटोमेटेड. टुडेज प्रोजेक्ट टॉपिक इज voice controlled home automation system. Today's topic, you can see, we are going to make a voice controlled home automation system using internet. Yes guys, that is why this project is known as IoT based voice controlled home automation system, because in this we are going to use internet as a medium to operate our appliances. हाँ guys, इस प्रोजेक्ट के लिए now आपको क्या क्या चाहिए होगा. I will tell you everything in detail and I will do everything in front of you so that you can also make the same project if you want, and you can learn the step by step procedure of the project. First of all, I will tell you the things you need to make this project. Here, first of all, to make the voice control home automation system, you need a laptop. सबसे पहले आपको चाहिए एक लैपटॉप. उसके बाद आपको चाहिए एक बल्ब और एक ऑल आउट या कोई भी अदर थिंग जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करती हो. ये दोनों ही चीजें हम अपने घरों में आम यूज करते हैं. आज मैं इन दोनों चीजों को आपको होम ऑटोमेट करके दिखाऊंगा कि मैं अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए इन दोनों को ऑपरेट करूंगा विदाउट यूजिंग माय हैंड्स और एनी ह्यूमन मोशन. जस्ट आई विल ऑपरेट these appliances using my smartphone, using my voice controlled home automation system. Then after that, you need a microcontroller which will act as a medium between the internet and the code we are going to write, that how to operate the appliances. For that we need a microcontroller. You can say the brain of the whole project. This is the microcontroller. Here I am using Node MCU to make this project. Why I am using Node MCU? Because in this is the cheapest module you can use this project, and this have the inbuilt Wi-Fi module. जी हाँ, इस पे इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल है. सबसे अच्छा फायदा इस प्रोजेक्ट का ये है, इस पे इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल है. अदरवाइज इफ यू यूज आर्डिनो बोर्ड तो उसके ऊपर आपको एक वाईफाई मॉड्यूल अलग से ही लगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी और उसको चलाना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज उसके लिए आपको डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करनी पड़ेंगी, उसकी वाईफाई मॉड्यूल की इंटरफेसिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल टास्क होगा. उसके लिए we have used this Node MCU because it is the cheapest and have the Wi-Fi module on build. Here we are using Node MCU as a microcontroller. Then you need a relay board. Relay board will act as a switch between your microcontroller and your 220 volt supply. Here you can see this is a 220 volt supply, and the supply we are going to provide with the sensors is 5 volt. This relay board will act as a switch here between the microcontroller and the 220 volt supply. After that you need some wires and a holder. Like I am going to automate this, so I need a holder for this. This switch will go into the 220 volt supply. Here you can see this switch will go 220 volt supply. I will plug this bulb into this holder. Then I will connect my other wires with relay board, and relay board will be connected with microcontroller, so that we can pass the commands through internet to the microcontroller. Microcontroller will send commands to the relay board. Relay will operate this. This will be the whole procedure. I showed you the things, and most important things, you need the jumper wires. Jumper wires according to your project. Here I am going to automate only one thing, one bulb, so I only need 3 wires. Only 3 wires, 3 jumper wires to operate this. Then after that you need a simple mobile charger cable to upload the code from the laptop to your microcontroller. You need this.
And the most important thing, you need a smartphone with an internet connection. Yes, as it is a IoT project, so you need a smartphone connected with internet. Then so guys, let's start to make the project. First of all, what you need to do, you need to take two wires like this, one connected to the two wires connected to the holder. Then what you need to do, the wire coming from the holder, you need to connect it to the switch. You can see this is a holder, or you can take any switch. The two wires are coming from it, then connect any one wire with any switch like this. You have connected, then you have to take the another wire from the switch like this. So at the end, when you will done with the connection, you will left with the two cables, one coming out from the holder like this, one wire coming out from the holder, and one wire coming out of the switch. So what now you need to do, you need to take a relay board, then the wire coming from the switch, this switch, the wire coming from this switch, you have to connect it into the first relay like this. It have 4 relay board. So you need to see, you have hold relay board and connect the wire coming from the switch in the center. So for that you need a screwdriver. So let's start. You need to open this and then connect wire coming from the switch into the center of any relay. So we have connected the wire in center. Then the wire coming from the holder, you have to connect it into the right side of the center, right part. Yes, you can see the first from this side. You have to connect this. Insert the wire into the relay board and tight the screw with the screwdriver. Yes. So now our holder is connected with a relay board. So first thing is done. Then what you have to do, you have to attach appliance with this. So this is our normal system that we use at our home. This is the normal system. So now this normal system is connected with this relay board. So now the second step, what we have to do, the relay board you have used, जो भी रिले बोर्ड आपने यूज किया है उसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करिए, एक जंपर वायर लीजिए और उसी रिले के ऊपर लिखा होगा, वो पहली रिले है, 2 सेकंड रिले है, थर्ड है या फोर्थ है, उसी नंबर के हिसाब से यहाँ जो आगे पिन्स है उन पिन्स पे लिखा हुआ है ग्राउंड, IN1, IN2, IN3, IN4, VCC. तो आपने जिस भी रिले बोर्ड पे कनेक्ट किया है उसके IN पे, IN का मतलब इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, सो उसके रिले बोर्ड पे इनपुट पिन पे आप एक जंपर वायर कनेक्ट कर दीजिए. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड रिले यूज की है तो मैं IN2 पे एक जंपर वायर लगा दूंगा. उसके बाद आपको क्या करना है, 2 जंपर वायर्स और लेनी है और एक जंपर वायर लगानी है VCC पे. VCC का मतलब है पावर. और एक बात ध्यान रखिए, इसके लिए आपको, इस बोर्ड की मैक्सिमम पावर है 3 वोल्ट.
सो बट लेकिन रिले बोर्ड की मैक्सिमम पावर है 5 वोल्ट। सो इसके लिए आपको एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स चाहिए होगा इस रिले को पावर करने के लिए, और वो अच्छा भी रहेगा ताकि आपकी रिले को पावर मिलती रहे। और वो बैटरी सोर्स होना चाहिए 5 वोल्ट का। यहाँ पे मेरे पास बैटरी सोर्स नहीं अवेलेबल, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा आर्डिनो बोर्ड टू पावर। आर्डिनो बोर्ड हमको 5 वोल्ट की पावर मैक्सिमम दे सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पावर देने के लिए आर्डिनो बोर्ड। उसके बाद आपको एक जंपर वायर लगानी है ग्राउंड पे। तो अब आपके ये कनेक्शन रिले बोर्ड से हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अपना नोड एमसीयू लेना है, उस पे क्या करना है, आपको एक कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शन क्या करेंगे, वीसीसी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस पे 5 वोल्ट, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद जो आपने आईएन पिन लगाई थी, इनपुट पिन लगाई थी जो आपने, इनपुट पिन को आप लगाएंगे यहाँ पर किसी भी डिजिटल पिन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं नोड एमसीयू पे डिजिटल पिन है D1 D2 D3 D4, ठीक है, D5 D6 D7, तो किसी भी एक डिजिटल पिन पे लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूं D1 पे। उसके बाद जो उसके बाद जो आपने ग्राउंड पे जंपर वायर लगाई है उसको आप कनेक्ट करिए ग्राउंड पे। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर जी लिखा होगा, ग्राउंड, जी फॉर ग्राउंड, तो आप वहां पर ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे ही आपने ये दो वायर कनेक्ट की, आपका वायरिंग कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया 3rd वीसीसी की पावर है, तो एक जंपर वायर लीजिए और उसको अपने आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर दीजिए। जहां पे आर्डिनो बोर्ड पे लिखा होगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पे आपने कनेक्ट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपका वायरिंग पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें चला के दिखा सकता हूँ जगह पर, लेकिन सिर्फ अभी हम बल्ब ही देखेंगे। तो ये हमारा वायरिंग का पार्ट पूरा हो चुका है, हार्डवेयर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपना लैपटॉप खोलना है। लैपटॉप पे आपको इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करेंगे, जैसे कि मैं आपको आता हूँ, एक चार्जिंग केबल चाहिए। चार्जिंग केबल्स को आप अपने लैपटॉप के साथ लगाइए, और दूसरा चार्जिंग वाला पार्ट आप उस पे लगाइए। आर्डिनो को भी कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपने बोर्ड को पावर दे सकें। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आर्डिनो को पावर दी, हमारा रिले बोर्ड पावर हो चुका है, और ये हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो अब अपने लैपटॉप पे जाइए। लैपटॉप पे आपको क्या करना है, आर्डिनो आईडी खोलनी है। हाँ, आपको इसके लिए कोई अलग आईडी नहीं चाहिए, सिंपल आर्डिनो आईडी खोलनी है।
गाइज अब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। लैपटॉप पे भी हमने कोड अपलोड कर दिया है अपने माइक्रो कंट्रोलर पे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 220 वोल्ट पे सप्लाई है हम कनेक्ट कर देख सकते हैं। ये होल्डर है, ये 220 वोल्ट सप्लाई है। ये मैंने 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर दी। हार्डवेयर पार्ट बता दिया था, सॉफ्टवेयर पार्ट बता दिया, कैसे आपने एप्लेट्स बना लिए, अपने एप्लेट्स बना लिए, एप्लेट्स की सारी इंफॉर्मेशन अपने कोड में डाल दी। सॉफ्टवेयर पार्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपका वाईफाई मॉड्यूल आपके घर की वाईफाई या किसी भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। मेरा फ़ोन एक अलग इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब आपके सामने देखिए वहाँ पर वो पड़ा है ऑफ है, आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। ओके गूगल, लाइट्स ऑन। ओके जी। सो आप देख सकते हैं कि लाइट जल चुकी है। अब इसी तरह मैं इसको ऑफ करूंगा। ओके गूगल, लाइट्स ऑफ। ओके जी। आप लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इनपुट्स और आउटपुट्स आ रही हैं। मेरे फोन पे कमांड्स जा रही हैं, लैपटॉप पे भी आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं कंसोल पे कि कैसे आपको आउटपुट्स आ रही हैं। एक बार फिर से ओके गूगल, ओके गूगल, लाइट्स ऑन। ओके जी। ओके गूगल, लाइट्स ऑफ। ओके जी। सो गाइज ये था आज का हमारा वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम। जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही है, आप अगर कमांड लिखेंगे भी लाइट्स ऑन तो ये ऑन हो जाएगा। आप कमांड टाइप करेंगे, असिस्टेंट पे टाइप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इट इज टाइप्ड एज वेल एज वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसी तरह के आईओटी के और भी प्रोजेक्ट्स मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा ताकि आप आईओटी सीख सकें। आपको कोड, हार्डवेयर डिटेल्स सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे मिल जाएगा। अगर आपको इसके हार्डवेयर पार्ट्स के कॉस्टिंग, कहाँ से खरीदें, कितने में पड़ेंगे और इसके जो भी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, रिपोर्ट्स कुछ भी चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है और आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम यूजर नेम भी शो हो रहा है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे डीएम करिए। डीएम करके प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है तो आप वहाँ पे वो भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। तो अगली बार लाऊंगा इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट, वो भी आपको इसी तरह डिटेल्स वाइज बताऊंगा और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।